Hello, good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are fine, sir. And what about And what about you? I'm also fine, thank you. But before moving ahead on the topic of today's session, let me confirm that what did you study in your last class? Actually, I was on leave and on my place, ma'am taught you all. I hope. What did yes, sir? Sir, empathy subject. empty subject? So empty subject is in the grammar junction section. So let me confirm that Yes, sir. whether did you understand or not what is Yes, sir. written the use of empty subject. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me open the grammar section. Okay. But can you confirm what is empty subject? Yes, sir. Yeah, tell me. Sir, if there is no subject in the sentence, we use it or there in the starting of the subject, but they can't give any information of anything. Yes, you all are, yes, you're right. Actually, many times we see that there is many sentence where the performer is not present. That means the subject, actual subject, the doer is not there. If doer is not there, just wait. Let me connect my system with another one. Yes, and many times we see that there is many sentences. There are many sentences that is not having the performer or the doer of the action. So at that situation, at that time, what we do generally, we use it or there as a subject to to fulfill the absence of the subject and to make the sentence correct as a grammatically. So it and there as a pronoun, that is a pronoun words, it can be used as a subject wherever we do not having any doer or action performer. So it and there is known as a empty subject in these kind of sentences. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I hope that ma'am also you taught you all that how to use the it or they, in which situation you Yes, sir. have to use the it empty subject or the they their empty subject. जो इट होगा टाइम और वेदर की बात किया जाए देन यू शुड यूज इट. ध्यान देने की बात है इफ इट इज द क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी की बात किया जाए चाहे वो टाइम की क्वांटिटी हो या किसी भी दूसरी चीजों की क्वांटिटी की बात किया जाए तो वहां पे देयर का यूज करेंगे. बट व्हेन इट इज डील विद द टाइम और वेदर ओनली तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे. इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफर टू द वर्क और जनरल थिंग, किसी जनरल वे में अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज को रेफर करना होगा तो हम वहाँ पे इट का यूज करते हैं. ये सारी चीजें मैम ने यहाँ पे समझाया, आप लोग को पिछली क्लास में समझाया होगा फिलहाल. Yes, sir. Yes, sir. कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कराया था. डिड ही टॉक द एक्सरसाइज? Yes, sir. Yes. whether you complete, whether this section was discussed or not? Yes, sir. Discussed. Yes, sir. Question number 2, 3 and 4. Okay. Yes, sir. Exercise. Question number 1, 2, 3. All these 3 exercises have been discussed in your previous class. Conducted Yes, sir. man. Isn't it? Yes, sir. The same topic is there in the grammar station. The same topic is there in the grammar station section. So let me clear that whether the exercise of grammar station based on empty subject was discussed or not. Yes, sir. Yes, sir. But I was going through the homework, the pick of homework, whatever you all have, the Prachi had sent. उसमें कई सारी गलतियां हैं जब मैम ने डिस्कस किया था तो फिर ऐसी गलतियां क्यों आ रही हैं? क्या ये सारे एक्सरसाइजेस के जो पॉसिबल आंसर है मैम ने डिस्कस किया है या बस समझा के छोड़ दिया था? ये सारा कंप्लीट कराया गया है? ये तो डेफिनेट आर्टिकल Yes, sir. जो किया गया था एम्प्टी सब्जेक्ट की बात किया जाए, क्या इसको डिस्कस किया गया था? Yes, sir. हुआ था. Yes, sir. Let me clear that कि इसमें पहले वाले में क्या होगा? It is certain that
It is certain that Yes, sir. क्या होना चाहिए यहाँ पे? It is It certain. is certain that we shall lose. अब यहाँ पे it was a miracle that you survived या that was a miracle that you survived, क्या होना चाहिए? So There it- was a It was a miracle. Okay, Yes, sir. it was a miracle is the correct answer. The third one, it is plenty of time होगा या there is plenty of time होगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम की बात किया जाए तो it का यूज करते हैं, लेकिन जब अमाउंट की बात करें या क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पे there यूज करते हैं. तो There होगा. Yes, sir. what is here? There. There is plenty of time is the correct answer. जिस भी बच्चे ने it is plenty of time लिखा है उनका आंसर गलत है, वो सही कर सकते हैं, वो सही कर नहीं सकते हैं, उनको सही करना चाहिए. It is very cloudy today या there is very cloudy today? मौसम की बात करें या It फिर is very cloudy. It is very cloudy today. the last one, there was a lot of shouting the last night या it was a lot of shouting क्या होना चाहिए? It was a lot of It shouting. was. जब किसी सिचुएशन की बात किया जाए या किसी प्लेसेस की बात किया जाए कि वहां पे क्या था, तो वहां पे तो देर सर करते हैं. There was a lot of shouting, there was a many beautiful flower, there was a many cars, ऐसे तो बोलते हैं वहां पे क्या था, क्या सिचुएशन था. तो यहाँ पे it was lot of shouting नहीं होगा, there was lot of shouting होगा. There was a lot of shouting there last night. यहाँ पे there दो बार आ रहा है, इसकी वजह से मत कंफ्यूज हो. फिलहाल सेकंड क्वेश्चन, rewrite each sentence by replacing the empty subject it or there with the another subject. अब आपको it और there की जगह पे आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको इसी सेंटेंस में से खोजना है. It was good that you were not hurt. अब इसमें क्या लिखा जा सकता है it और there की जगह पे? So you were not hurt. That was good. Yes, you were not hurt. यहाँ पे साफ साफ you को रेफर किया गया, you were not hurt. That was a good या house good, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. It is hard to think of anything to do. It is hard to think So of. firstly, I think too much Firstly, you before doing anything. should not use any other words. Firstly, secondly, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले मैंने किया, दूसरी बार मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. To think of, अब it is hard to think, एक तरीके से जो दूसरा आपका वर्ब है उसी से ही सेंटेंस बना लीजिए. To think of anything, to do is very hard. To very नहीं लगा तो very मत लगाइए. To think of anything to do is hard. To think of anything मतलब कुछ करने के लिए सोचना जो है वो बहुत ही हार्ड है. It puzzles me why she took this job. It puzzles me why she took this job. अब इसमें मी यानी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो it puzzles me यानी I puzzled, मैं puzzled हो गया, यही तो कह सकते हैं. Yes, sir. I puzzled that why she took this job. I puzzle to know वगैरह नहीं है तो मत यूज करिए. I puzzle. It puzzles me की जगह पे लिख दीजिए I puzzle या I am puzzled why she took this job. मैं puzzle यानी मैं भ्रमित हूँ, मैं एक तरीके से puzzled हूँ कि आखिर इसने ये जॉब क्यों लिया, ये काम क्यों लिया. It has been wonderful working with you. इसका it के जहाँ पे कैसे इसका सब्जेक्ट को रिप्लेस करें. So working with you is wonderful. Wonderful, very good. Working with you has been wonderful. आप टेंस नहीं चेंज करेंगे. Working with you has been Yes. wonderful. There is no doubt that she was embarrassed by the whole affair. अब यहाँ पे she यहाँ पे आई गई है तो फिर इसको आप Yes, sir. कर सकते हैं. There is no doubt, जहाँ पे कोई डाउट ना हो उसको क्या बोलेंगे? Undoubtedly. तो क्या बोल सकते हैं? She was undoubtedly embarrassed by the whole affair. आराम से हो जाएगा. She was undoubtedly Yes, sir. embarrassed by the whole affair. Okay. फिलहाल थर्ड वाला लगभग लोगों का सही है. My favorite time of the year in Shimla is the spring. Right now it is June and there is
देयर आर, यहाँ पे फ्लावर्स आपका प्लूरल है तो देयर आर होना चाहिए। देयर आर Yes, फ्लावर्स sir. एवरीवेयर। इट इज हॉट इनफ टू अवॉइड स्वेटर्स एंड शॉल्स बट नॉट टू हॉट ऑन मॉल रोड। अब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट, अब देयर इज नहीं होना चाहिए, देयर आर होना चाहिए। Yes, sir. There are hundreds of tourists, but if you don't like crowd, it is easy to get away. There is a beautiful tourist spot, यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे there is लगा रहा हूँ। There is a beautiful tourist spot called Sunset Point and it is only about 5 kilometers from Mall Road. From the parks, there is a lovely view of the valley and sometimes you can see the snow-capped mountain in the distance. Okay? Yes, sir. So, is it clear? Everybody can complete? Yes, sir. But after grammar junction and grammar station, also let me clear that whether any exercises left in the booksy or not. Let me open the booksy. Grammar junction is there. Yeah, in this book there is a some of Yes, the sir. that is written already. आपको इस रूल्स को सपोर्ट करने के लिए यानी इस हर रूल के कुछ ना कुछ एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स लिखने हैं 2 सेंटेंस में, तो आप अपने बुक से ही खोज करके लिख सकते हैं, लिख ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. आपको Yes. ऐसे लिखना है जहाँ पे दा का यूज इस तरह किया गया हो, मतलब इस सिचुएशन के लिए किया गया हो जहाँ दा इसलिए यूज किया गया हो कि जो पहले से मेंशन है उसके अगर वो सेम दोबारा आ रहा है तो उसके लिए दा यूज किया गया है, तो इस तरह का एग्जांपल आपको शो करना है। तो इसी तरीके से बी सी डी ये चारों कर ले जाएंगे आपके बुक्स में। Yes, Yes, sir. sir. सारे रूल्स को पढ़ाते समय कई सारे एग्जांपल थे, वही उसी तरह के एग्जांपल या तो वही लिख दीजिए या उसी तरह के अपने खुद के एग्जांपल लिख दीजिए, लिख ले जाएंगे। Yes, sir. बाकी लोग बताएं, अनुराग अनुभव कर ले जाएंगे सर। Yes, sir. Select an article from an old newspaper. Circle all the instances of the empty subjected in there. आपको एक काम करिए, कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ पे आता है इंग्लिश में, फिलहाल यहाँ पे बड़ा मुश्किल है गाँव में, फिलहाल आपको आपके पास अगर कोई आर्टिकल है या कहीं पे मिलता है फोन पे या फिर हो सकता है कि पुराना न्यूज़पेपर वगैरह कटिंग अगर हो तो उसमें से आप इट और देयर ऐसे आपको सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे इट एंड देयर एज ए एम्प्टी सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हों। तो एक बार आप उसको देखें और उसको एक बार सर्कल करें। राइट ए सेंटेंस एडिंग टू द आर्टिकल यूजिंग द आइदर ऑफ द एम्प्टी सब्जेक्ट्स यू हैव लर्न। फिलहाल आप इट और देयर अगर एम्प्टी सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया तो आप उसको सर्कल करें, आप पहचान ले जाएं तो वही काफी है। ओके, Yes, sir. Yes. grammar station in book C. After the grammar junction and grammar station, there is the next topic, the next section is writing junction, I think. Beta, Yes, sir. in writing junction section, we would be learning that how to write about a site or as we learned in the poem in this chapter, जैसा कि हम लोगों ने पोएम में पढ़ा, तो क्या होता है जो पोएट है कहीं ना कहीं उस पूरे पोएम में कहीं ना कहीं अपने जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको बहुत अच्छे से फिलहाल यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो एक बार हम उसको पढ़ेंगे और फिर उसमें से जो साइट को कैसे आप मतलब आखिर साइट को या किसी भी दृश्य को, दृश्य साइट यानी किसी भी दृश्य को आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको उसके बारे में सीखेंगे। और उस किसी भी दृश्य को आप डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या क्या चीजें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, किस किस किन किन चीजों की बातें कर सकते हैं, तो सारी चीजें पढ़ने के साथ साथ में एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे कि किसी पर्टिकुलर दृश्य के बारे में हम देखें। उस दृश्य वो दृश्य कोई भी हो सकता है, कोई मूविंग पिक्चर हो रहा है या कोई कहीं पे आप सर्कस में गए हैं या कहीं किसी शादी समारोह में गए हैं या किसी हॉल में बैठे हैं या आप मान लीजिए घर पे ही बैठे हैं किसी रूम में, तो उस समय जो दृश्य है वहाँ का जो साउंड है या वहाँ की जो फील है यानी जो ऐसा महसूस कर रहे हैं या जो आप देख पा रहे हैं उस सारे यानी पूरे दृश्य में ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है सिर्फ उसी की बात किया जा रहा है। दृश्य में मतलब सारी चीजें, चाहे वो जो फील आपकी जो आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, जैसा जो आपको दिख रहा है वो सारी चीजों का एक तरीके से पूरा का समावेश है। एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पहले पोएम। And that is almost all I can remember. The house, the mountain, the grey cat on her knee, her red shawl and the tree, and the taste of the berries, the feel of the sun I remember, and the smell of everything that used to be so long ago. आप यही
छह सात लाइनों में फिलहाल पोएट ने यहाँ पे क्या क्या किन किन चीजों को की बातें किया है। टेस्ट की भी बात किया है, क्या कि टेस्ट कैसा था, फील ऑफ द सन यानी वहां की जो फील कर रहा था एक तरीके से जो अनुभव था, वो चीजें जो वहां का एक तरीके से जो दृश्य था, यानी जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साइड कलर्स थे वहां पे किस कलर की, रेड शॉल एंड द ट्री, यानी एक तरीके से कौन सी कलर, ब्राउन कैट या ग्रे कैट ऑन हर नीज कहाँ पे बैठी थी। तो यानी एक एक करके दृश्य को जिस तरीके से, हाउस कैसा था, माउंटेन क्या था, यानी एक तरीके से जो लोकेशन है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, जो फील है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है, जो वहाँ पे थिंग्स उसको खाने को मिला कहीं ना कहीं उसके टेस्ट और उसके फील को भी डिस्क्राइब किया गया है इन द पोएम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से Yes, sir. द पोएट स्पीक्स अबाउट द साइड ऑफ द हाउस। अब जो पोएम में बताया गया है उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो अभी मैंने बताया, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं बुक्स में। द पोएट स्पीक्स अबाउट द साइड ऑफ द हाउस, द ग्रे कैट and the red shawl and the tree using colors. The poet also mentioned the taste of the berries and the feel of the sun and the smell of everything. In the description of the memory, the poet is evoking the five senses. Evoking मतलब एक तरीके से हाल करना, एक तरीके से यानी जो सेंसेस के थ्रू जो महसूस कर रहा है। हमारे कौन से फाइव सेंस ऑर्गन है ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। No, sir. सेंस से जो चीजें हम सेंस कर रहे हैं वो सारी चीजों को पोएट ने इस पोएम में एक तरीके से इवोक किया है, यानी उसका आह्वान किया है। Even we write a descriptive passage, we try to create a picture in the mind of the reader. The description should be such that the reader feels she has experienced it first hand. जो डिस्क्रिप्शन है, जब कभी कुछ लिखा जाए तो उसको इस तरीके से लिखा जाए कि जो रीडर है यानी जो पढ़ने वाला है उसको फील करे। यानी जब ये पोएम पढ़ा गया तो रेड शॉल या मतलब जिस तरीके से पोएट ने मतलब डिस्क्राइब किया है इसी पोएम को जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर ध्यान से उसको पढ़ो तो एक बार महसूस करेंगे कि यानी एक एक चीजें, यानी वो पिक्चराइजेशन ऐसा, मतलब जिस तरीके से पोएट ने एक एक चीजों का कि कौन से कलर का है, कैसे बैठी थी अंडर ए ट्री, बिहाइंड द ट्री, जिस तरीके से वहां का जो साइट है उसको डिस्क्राइब किया है। जो ओल्ड वुमेन थी उसके शॉल को के कलर को, कैट के कलर को, कहाँ पे बैठी थी, वो सारी चीजें एक तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्स में, आप चाहें तो आपके मन में एक दृश्य सा उभर आता है। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा ही होना चाहिए कि इस तरीके से वर्ड्स में आप उसको लिखें कि जो वहां जो उस पर्टिकुलर समय का जो उस पर्टिकुलर साइट का जो दृश्य है वो जो रीडर है उसके उनके दिमाग में बस जाए, यानी उनको दिखने लगे अंदर ही अंदर। The poet makes the poem interesting with the intensity of the images, the red shawl, the grey cat, and the heat on the dusty road. But the description is not just visual; it appeals to all the senses. कहने का मतलब है जो डिस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं वो विजुअल नहीं है, वो दिखाया नहीं गया है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं इट अपील्स टू ऑल द सेंसेस, ये सिर्फ सेंसेस को के थ्रू ही इसको महसूस किया जा सकता है। तो जो पोएम है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है, ये इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes. इस तरीके से मान लीजिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर दृश्य को या साइट को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो let us look at an example. Let's say you had to describe a road on the rainy day. अब यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर रोड के बारे को डिस्क्राइब करना है। एक रोड को किसी बरसात वाले दिन में कि किसी रोड को आपको डिस्क्राइब करना है, तो आप किस तरह के रोड पे हैं आप, ये मायने रखता है। आप गांव में हैं, मान लीजिए रोड गड्ढा मुक्त हो गया है आपका रोड तब तो ठीक है। अगर किसी नेशनल हाईवे वाले रोड पे हैं तो वहाँ पे आपकी दूसरी फीलिंग होगी, आपके जो वर्ड्स जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप बहुत सारी चीजें अलग अलग लिख सकते हैं। द साउंड ऑफ द व्हीकल्स जो बार बार तुरंत आ रही हैं, जो वहाँ पे गार्डनिंग का भी काम जो बीच में हुआ रहता है उसको, उसकी जो फील्स है और जो आपका स्मूथनेस है, ये सारी चीजें आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम अपने गाँव के सड़कों की बात करें तो हाउ यू कैन राइट अबाउट दैट, वो भी रेनी डे के समय आप क्या क्या बात कर सकते हैं। उसमें पानी भरा हुआ गड्ढा, जब गाड़ी चलती है तो जो पानी भरा होता है उसमें भी कुछ आवाज आती है। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं एक एक करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, एक एक करके Yes, ऐसे। sir. फिलहाल जो आपका रूल्स है एक तरीके से क्या क्या चीजें आप ध्यान दे सकते हैं, आपके बुक्स में क्या मेंशन है उसको भी एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। व्हाट वुड यू राइट अबाउट द साइट, जो साइट के बारे में यानी दृश्य के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। I saw a white mini man chugging along, throwing white plumes into the air.
अब ऐसे में बरसात के दिनों में ऐसा क्या होता है कि जो गाड़ियां होती है ना कहीं उसका जो धुआं होता है वो एक तरीके से व्हाइट कलर का, यानी उसका मतलब नॉर्मल धूप में देखेंगे तो जो एयर निकलता है, जो धुआं होता है, फ्यूम्स होता है गाड़ियों का, वो थोड़ा सा विजिबल नहीं रहता है, बट बरसात के मौसम में, रेन डे में थोड़ा सा विजिबिलिटी दिखने लगती है। तो ऐसा व्हाइट मिनी वैन, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने देखा कि एक गाड़ी थी वो व्हाइट फ्यूम्स थ्रो कर रही थी, यानी फेंक रही थी इनटू द एयर, यानी वातावरण में, एयर में, यानी हवा में वो कहीं ना कहीं व्हाइट कलर का फ्यूम्स यानी धुएं थ्रो कर रही थी। ब्लैक क्लाउड्स hung in the air. Wherever I looked, there were colorful umbrellas. मैं इधर उधर जहां आसपास देख रहा था तो लोगों के हाथों में अम्ब्रेलास था, तो क्या आप कह सकते हैं? Wherever I looked, मैं कहीं जहां कहीं भी देखता था, there were colorful umbrellas. लोग अम्ब्रेलास, कलरफुल अम्ब्रेलास लेकर के थे। तो आप जो साइट की बात किया जाए तो उस समय आप क्या आप गाड़ी के जो धुएं की बात है उस मौसम के अकॉर्डिंगली उसकी बात किए। आप जो ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब आसमान की बात करें, तो वहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स हंग इन द एयर। जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो कहीं ना कहीं एयर में लटके हुए हैं, टंगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है। जब बारिश होने वाली रहती है तब ऐसे ही तो कुछ होता है। Yes, sir. Yes, sir. Wherever I look, there was colorful. हम इधर उधर कहीं पे भी देखेंगे तो लोगों को अम्ब्रेलास में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं जहां कहीं भी देखूं मुझे बहुत कलरफुल अम्ब्रेलास दिखाई पड़ रहे हैं। Many other things you can add, but it is on you that how you describe the situation. अब साइड की बात करें, अब साइड के बाद आप वहां के साउंड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। What do you say about the sound? The pleasant pitter patter of the rain falling on the umbrellas. अब pleasant मतलब अब जब आप अम्ब्रेला लेकर के खड़े हैं तो pitter patter of the rain falling on the umbrellas mingle with the harsh honk of the कार हॉर्न। यहाँ पे हार्श हॉर्न मतलब एक तरीके से तीक्ष्ण जो कार का हॉर्न होता है ना, आवाज, तो जो हॉर्न की जो आवाज होती है उसको हॉर्न बोलते हैं। यानी एक तरीके से जो पिटर पटर बरसात जब होती है तो जो बूंदाबांदी की आवाज होती है अम्ब्रेला छाता पे, तो कैसे होता है? एक तरीके से कह सकते हैं किस तरह की आवाज निकलती है, पट जो भी है मतलब निकलती है एक तरीके से। जो अम्ब्रेलास पे जो आपका बूंदाबांदी जब होती है तो उस पे जो आपका जो बूंदाबांदी की जो आवाज होती है उसको पिटर पटर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एक तरीके से हल्की थपकी की तरह कह सकते हैं कि जो थपथपाहट होती है बरसात का, तो वो Yes, sir. और वो किस तरह किसके साथ मिक्स किया हुआ है? जो और गाड़ियां रोड पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके हॉर्न की बरसात में कुछ ज्यादा ही हॉर्न बजने लगता है, ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां स्लो चलने लगती हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों का मिश्रण के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग टॉकिंग अबाउट द साउंड्स। ओके, Yes, sir. Yes. sight and sound, what we can talk else, what else we can talk about? We can talk about the smell of the situation. अब स्मेल क्या है? बरसात के मौसम में रोड पे आप खड़े हैं, then what you can talk about किस तरह के स्मेल की बात आप कर सकते हैं? The smell of the soil wet with the rain mingle with the smell of freshly cut grass and the morning blooms. ये mingle means होता है मिश्रित, mingle means होता है मिश्रित यानी मिले हुए। Then smell of the soil यानी जो मिट्टी की जो महक है, अब मिट्टी की महक कभी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप होता है बिट जो आपका गीली मिट्टी की जो महक है, with the rain mingle with the smell of freshly cut grass and the morning blooms, जो सुबह की खिली हुई एक तरीके से जब बारिश होती है, जब बारिश तो ऐसा लगता है कि बारिश होके जब खत्म हुआ रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह खिली सुबह लगता है, सारा पूरा आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। जो स्मेल होता Yes, sir. है तो वो थोड़ा सा तरोताजा, एक बहुत ही फ्रेश आप स्मेल करते हैं, आप एक कहीं ना कहीं जो सांस लेते हैं वो ताजा हवा बिल्कुल लगता है और एक तरीके से फ्रेश थोड़ा सा लगता भी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट के बारे में क्या सकते हैं? आई सॉ अ वेंडर सेलिंग हॉट समोसास एंड टी। अब उसी बरसात के मौसम में आपको समोसा और टी बगल में आप सड़क से जा रहे हैं दिखते हुए दिख जाए किसी कचौड़ी की दुकान, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके स्मेल को भी आप यहाँ पे मतलब कर सकते हैं। आई वाज गोइंग टू मतलब थ्रू द आई सॉ अ वेंडर सेलिंग हॉट समोसा एंड आई कैन मतलब एक तरीके से जो उसका स्मेल है उसको भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख सकते थे। फिलहाल अगर आपने खाया तो उसके टेस्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। कैसे? आई कुड ऑलमोस्ट टेस्ट
The yummy fried potatoes slashed with the delightful spices dipped in a tangy sauce. Tangy sauce मतलब एक तरीके से चटपटी चटनी. Dipped मतलब डूबा हुआ. Delightful आपको पता ही है कि बहुत ही मतलब स्वादिष्ट स्पीसीज मतलब व्यंजन. Potato slashed. सब मिला के I could almost taste, मैंने almost लगभग टेस्ट ही किया, यानी एक तरीके से जो वहां का जिस मतलब जो टेस्ट था समोसा जो थी का उसके टेस्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग. I could almost taste the yummy fried potatoes laced with the delightful species dipped in tangy sauce. अब यहाँ पे जो आपका जो उसने खाया उसको कहीं ना कहीं इतना तक बता दे रहा है कि फ्राइड पोटैटोज था लेस्ड विथ मींस क्या कह सकते हैं. लेस्ड मतलब एक तरीके से सजा हुआ, यानी जो फ्राइड पोटैटोज था यानी फ्राइड पोटैटो था वो एक तरीके से सजा हुआ था, एक तरीके से इस तरीके से रखा हुआ था विद द डिलाइटफुल स्पाइसेस, यानी एक तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट स्पाइसेस डिप्ड इन दैट टैंगी सॉस, यानी एक तरीके से मिर्च जो कि बहुत चटपटी चटनी में डिप किया हुआ के साथ एक तरीके से सजा हुआ था वो आपका फ्राइड पोटैटोज. यानी एक तरीके से आप तो अगर इस तरीके से यहाँ पे इस सेंटेंस को यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब किया गया कि आप चाहें तो जिस तरीके से बताया गया कि आपका दोना है उसमें आपका फ्राइड पोटैटोज भी है, मिर्च है, उसमें चटपटी चटनी में डुबोया हुआ ऊपर सजा के रखा गया है. इसको आप एक तरीके से आप इमेजिन या एक तरीके से पिक्चराइजेशन कर सकते हैं अपने मन में. और ये पिक्चराइजेशन कब कर सकते हैं, क्या हम इसको बिना पढ़े इस तरीके का पिक्चराइजेशन अपने मन में ला सकते थे, कर सकते थे? No, sir. इसको पढ़े No, sir. समझ में आए और फिर इसको हम इमेजिन एक तरीके से कर सकते हैं, यानी इसकी इमेज जो है हम अपने माइंड्स में बना भी सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी शुड डिस्क्राइब, दिस इज हाउ वी कैन राइट अबाउट एनी टेस्ट. ओके, Yes, sir. also we can talk Yes, about sir. that the chilly morning air felt refreshing on the skin, the drops of the rain felt like they were trying to tickle me. यानी the chilly morning air felt refreshing on the skin. जो chilly morning यानी एक तरीके से ठंडा जो बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है, यानी जो ठंडा वाला वो बहुत ही स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस कराने वाला था. The drops of rain, जो बारिश की जो बूंदें थी, felt like they were trying to tickle me. ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि वो हमें गुदगुदी लगाना चाह रही है, टिकल करना चाह रही है. ठीक है, तो यहाँ पे बूंदों की जो टच है उसके स्किन पे उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. आई होप कि हम स्मेल को, साउंड्स को, साइट को या टेस्ट को या टच को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल्स में आप लोगों ने सीखा होगा. Yes, sir. Now you Yes, sir. can write also in the same way. Also, you can write about any child. You can remind any childhood memory whenever you were walking down a road and saw something which write a descriptive paragraph describing the object or the scene. Involve all the five senses in your description. आपको कुछ विशेष अगर आपको कहीं आप एक बार मेमोराइज करें कि जब आप बच्चे थे, आप कहीं पे जा रहे होंगे रोड पे, आपको कुछ ऐसा कुछ विशेष आपको वहां पे दिखा, तो उस समय आप अपने सेंसेस का यूज करते हुए कैसे आप उस सीन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं जस्ट लाइक द एग्जांपल व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड. तो आप लोग उसको कोशिश करिएगा. ठीक है, Yes, sir. कह सकते हैं आई वेंट, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आई वेंट टू माय फ्रेंड्स, मैं किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे गया, तो फिर वहाँ के साइट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या साउंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या वहाँ का टेस्ट या स्मेल कैसा है. आप किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे गए, वहाँ की साइट, वहाँ का साउंड, वहाँ का जो टेस्ट या वहाँ की जो स्मेल है या वहाँ का जो टच है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिख सकते हैं. तो you should write of your own. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये राइटिंग मेंशन में क्या बताया गया है, कैसे लिखना है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक तरीके से ये चीजें समझ में आया. सब लोग लिखते जाएंगे. अगर लिखना चाहें, मान लीजिए Yes. किसी पर्टिकुलर रोड या अपनी चाइल्डहुड वाली किसी मेमोरी को याद करके आप लिखना चाहें, या किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे जब गए, या मान लीजिए मन ही बना लें कि चलो ठीक है अभी चाइल्डहुड नहीं अभी आज ही कल परसों या फिर कहीं पे आप गए हो, वहाँ का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ उस सिचुएशन का लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप करिएगा. स्पीकिंग जंक्शन में बेटा
स्पीकिंग इंटेंशन में क्या है? इन द पोएम द पोएट यूज्ड वर्ड टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द of a childhood memory of a walk along a dusty road in summer. This is another picture the poet drew of a memory of one writer vacation. Let us see what can be said to describe it. बेटा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि there is a picture. आप अगर पोएम की बात करें तो वहां पे भी एक पिक्चर था, उसी पिक्चर को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया था। अब इस पिक्चर को डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसको जरा ध्यान से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। In this picture we can see two girls. In this picture we can see two girls building a snowman. Looking at the amount of snow and the snow-covered trees, we can be sure that winter is at its peak. The girls are having a lot of fun. The snowman placed between the two looks smart and happy, with a hat, a red muffler and a big shiny carrot for a nose. The children are making some more snowballs, so they must be making another snowman. बेटा यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पिक्चर को आप देख करके क्या देख पा रहे हैं, उसी को डिस्कस करने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे उसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। इस पिक्चर को यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये आप लोगों ने पढ़ा, समझ में आया? Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक दूसरा पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है, आपको लिखना है। तो इसमें जो भी दिखे आप क्या कह सकते हैं, ये अभी क्या ये बच्ची थोड़ा सा एक तरीके से सरप्राइज दिख रही है, आप क्या सकते हैं, इन दिस पिक्चर देयर इज अ गर्ल, इन दिस पिक्चर देयर इज अ गर्ल along with three animals. एक जो पपी है उसके हैंड में है, और beside the girl there is a duck and sheep is looking very sad. तो कुछ सिचुएशन आप लोग बना करके आप इस पिक्चर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख ले जाएंगे इसको, जैसे ऊपर दिया गया है, इस पिक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, कर ले जाएंगे। Yes, sir. क्या है, हमने कोशिश किया, what I have written I can tell you all, और आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने तरफ से आप लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। In this picture we see a little girl and three animals. The girl is probably 9 or 10 years old. अब यहाँ पे गर्ल की जो एज की बात भी लिख दिया गया, आपके ऊपर है कि कितना लंबा आप खींच सकते हैं, कितना ज्यादा लिख सकते हैं। She is holding a little puppy in her hands. There is a goat and a duck beside her. वहां पे एक डक और गोट है उसके बगल में। She is looking at something. वो किसी तरफ देख रही है। She is looking at something and is shocked. वो किसी तरफ देख रही है और कहीं ना कहीं वो shocked है, यानी एक तरीके से surprised है। The goat is looking at the little girl and looks sad. जो goat है यहाँ पे, इसकी बात करें, sheep नहीं है, actually it is goat. जो goat है, the goat is looking at the girl. जो goat है वो लड़की की तरफ देख रहा है and looks very sad. वो बहुत ही दुखी लग रहा है। अब क्या हो सकता है, perhaps the girl had seen something which made her sad and perhaps यानी शायद लड़की ने किसी ऐसी चीज को देखा जो कि उसको एक तरीके से शॉक्ड बना दिया, यानी उसको एक तरीके से अचंभव कर दिया और दुखी कर दिया। An animal are unhappy to see her upset. और ऐसे में जो एनिमल्स थे, जो गर्ल्स के आसपास के एनिमल्स थे, वो अपने एक तरीके से गर्ल को एक तरीके से शॉक्ड या सैड देख करके अनहैप्पी हो गए, यानी दुखी हो गए। ओके, तो इन द सेम वे आल्सो यू कैन राइट अबाउट दिस पिक्चर। और एक बार कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिसनिंग सेक्शन कंप्लीट करेंगे और लिसनिंग सेक्शन को करेंगे और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन मेंशन करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, अगर लिस्टिंग हो पाएगा तो सिर्फ लिस्टिंग किया जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत कवर करें। अभी आज का जो सेक्शन रहा आपका स्पीकिंग जंक्शन या फिर राइटिंग जंक्शन में, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. इसका जो आपका बुक में अगर कोई एक्टिविटी होगा तो उसको करिएगा, और जो आपका ग्रामर जंक्शन या ग्रामर स्टेशन में जो आपकी एक्सरसाइजेस है उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने नोट्स बनाते चलिएगा। आपके स्कूल्स 23rd ऑफ दिस मंथ से ओपन हो रहे हैं। 23rd ऑफ दिस मंथ से एक तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ऑप्शनल हो जाएगा। हो सकता है अगर सारे बच्चे अवेलेबल होंगे तो फिर ऑनलाइन क्लासेस की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कुछ बच्चे नहीं आ पाएंगे
अगर ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड होगी तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Goodbye, sir.